آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں نوید انجم۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ شہر کی AIMIM معذور سیل نے میونسپل کارپوریشن کو دیا سخت انتباہ۔ تنظیم نے مطالبہ کیا کہ معذور افراد کے بقایا جات فوری کیے جائے ادا۔ بصورت دیگر 6 اگست کو کارپوریشن دفتر کے باہر شدید احتجاج کا دیا انتباہ۔ اورنگ آباد ضلع پریشد میں ملازمین کی حاضری کا نیا ڈیجیٹل نظام نافذ۔ اب ہوگی تمام ملازمین کی حاضری براہ راست چیف ایگزیکٹو آفیسر کے موبائل پر، جس سے دفتری نظم و ضبط اور شفافیت میں آئے گی بہتری۔ شہر جالنا کی کنڈلیکا ندی کے کنارے کچرے کے بڑھتے ڈھیر بڑے شہریان کا درد سر۔ مقامی افراد نے صحت اور ماحولیات کو لاحق خطرات پر تشویش کا کیا اظہار اور انتظامیہ سے کیا فوری صفائی مہم چلانے کا مطالبہ۔ اور تعلقہ پرتور ST ڈپو کو ملا 5 نئی بسوں کا تحفہ۔ افتتاح کے بعد رکن اسمبلی ببن راؤ لونیکر نے خود کیا بس میں سفر، مسافروں سے کی ملاقات اور دیگر سہولتیں فراہم کرنے کے عزم کا کیا اظہار۔ اب خبریں تفصیل سے۔ اورنگ آباد AIMIM معذور سیل نے میونسپل کارپوریشن انتظامیہ کو انتباہ دیا ہے کہ اگر 5% فنڈ کے تحت معذور افراد کے وظیفے اور دیگر بقایا جات فوری جاری نہ کیے گئے تو 6 اگست کو کارپوریشن کے باہر شدید احتجاج کیا جائے گا۔ دیے گئے میمورنڈم کے مطابق کئی مرتبہ نمائندگی کرنے کے باوجود ابھی تک بڑی تعداد میں معذور افراد کو 4 ماہ سے ادائیگی نہیں ملی ہے، جبکہ مالی سال 2026-27 کے لیے ضروری سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ لڑکی بہن یوجنا میں شامل معذور خواتین کے کھاتوں میں بھی بغیر کسی تاخیر کے رقم منتقل کی جائے۔ تنظیم نے الزام لگایا ہے کہ متعلقہ افسران صرف یقین دہانیاں ہی دے رہے ہیں لیکن عملی کارروائی نہیں ہو رہی۔ AIMIM معذور سیل نے واضح کیا ہے کہ اگر 5 اگست تک تمام مستحقین کو رقم جاری نہیں کی گئی تو 6 اگست کو میونسپل کارپوریشن کے مرکزی دروازے سمیت تمام گیٹس پر شدید احتجاج کیا جائے گا اور احتجاج کے دوران کسی بھی ناخوشگوار صورتحال کی پوری ذمہ داری میونسپل انتظامیہ پر عائد ہوگی۔ پتر بار بار دینے کا مقصد یہ ہے کہ مہانگر پالیکا کے جو مکھیہ لیکھا ادھیکاری صاحب ہے وہ دیویانگوں کو گمراہ کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ جب منپا آیوگ ان کو بولتے ہیں پیسے ریلیز کرو تو 2 دن میں ریلیز کر رہا ہوں، 4 دن میں ریلیز کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے ہم نے 14 تاریخ کو مہانگر پالیکا کے اوپر ایک آندولن کیا، جب انہوں نے آشواسن دیا تھا کہ ہم 2 دن کے اندر پیسہ ریلیز کر رہے ہیں، لیکن ان کے 2 دن ابھی تک نہیں ہوئے۔ 1 تاریخ کے پیپر کے اندر باتمی چھاپتے ہیں، نیوز ڈالتے ہیں کہ میں نے جون جولائی تک کے 25-26 کا دیویانگوں کو پیسہ دیا ہے۔ تو انہوں نے کس کو پیسہ دیا؟ میرے پاس میں آنکڑے ہیں پورے۔ میں جو 6 تاریخ کے دن مہانگر پالیکا کے اوپر ہم لوگ جو تیور آندولن کرنے جا رہے ہیں اس کے وشے پہ ہم پورا خلاصہ کریں گے۔ اور لاڑکی بہن یوجنا کے نام پر دیویانگ مہیلاؤں کو 2 سال سے ونچت رکھا گیا، جبکہ ان کو لاڑکی بہن کا لابھ نہیں مل رہا اور مہانگر پالیکا سے جو 5% نیتی ہے وہ بھی نہیں مل پا رہی۔ بار بار ہمارے دیویانگ مہیلائیں یہاں پر چکر مار مار کے پریشان ہیں۔ اس وشے کو لے کر ہم لوگ یہ مدعے کو اٹھا رہے ہیں کنٹینیو۔ جب 14 تاریخ کے دن مہانگر پالیکا یہاں پر جو آندولن ہم نے یہاں پر کیا تھا، اس کے بعد مہیلا بال کلیان کو یہاں سے پتر بھیجا گیا اور وہاں سے بھی اس کی کاپی ویریفائی ہو کے آ چکی ہے، لیکن یہ لوگ کام کرنے کو تیار نہیں ہے، یہ دیویانگوں کو گمراہ کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ تو اسی وشے میں آج منپا آیوگ مہاپور صاحب اور سبھاپتی اور اپنے ورودھی پکش نیتا ہمارے سمیر ساجد صاحب، یہ سبھی کو لیٹر دیا گیا اور 2 دن کا ان کو سمے دیا جاتا ہے۔ اگر 5 تاریخ تک کے یہ سبھی دیویانگوں کے اور مہیلاؤں کے پیسے ریلیز نہیں کیے جاتے تو 6 تاریخ سے مجلس اتحاد المسلمین دیویانگ سیل کی طرف سے یہاں پر بے مدت آندولن کیا جائے گا اور مہانگر پالیکا سے جو بھی جتنے بھی ورش کے پیسے باقی ہے وہ پورے لیے بغیر مہانگر پالیکا کا ہم پیچھا چھوڑنے والے نہیں ہیں، کیونکہ ہر بار ہم کو صرف آشواسن ملتا جا رہا ہے، لیکن اس بار آشواسن نہیں، اس بار جو ہے تو ہمارا حق ہم یہاں سے لے کر جائیں گے۔ میں محسن خان، MIM پارٹی، دیویانگ سیل، شہر اپڈیٹ۔ ریاست میں مسلسل سامنے آ رہے پیپر لیک کے معاملات پر سمبھاجی بریگیڈ نے سخت ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے ناندیڑ میں ضلع کلکٹر دفتر کے سامنے احتجاج کیا۔ تنظیم نے مطالبہ کیا کہ پیپر لیک کے ذمہ داروں کے خلاف فوری اور سخت کارروائی کی جائے، ورنہ ریاست بھر میں احتجاج مزید تیز کیا جائے گا۔ आज संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने जे राज्यभर धरणे आंदोलन करून जे काही आमच्या मुख्य मागण्या आहेत
जी काल पोराची नीट परीक्षा असेल, फुटीचं प्रकरण असेल, MPSC फुटीचं प्रकरण असेल, TAT पेपर फुटीचं प्रकरण असेल. कारण TATचा पेपर 2018 मध्ये जो काही घेतला होता त्या पेपर मध्ये जे काही गुणांमध्ये ते कमी जास्त तफावत गुणांमध्ये आलेली आहे. त्यामुळे 2020 मध्ये सुद्धा गुणांमध्ये TATच्या पेपरमध्ये गुणांमध्ये वाढ झाली होती. अशा अनेक पेपर आहेत TATचे त्याच्यामध्ये फेरबदल झालेले आहेत. त्या TATच्या पेपरचे जे काही असतील ते अशा अनेक पेपर रद्द करण्यात आले होते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागला होता. मी आपल्या माध्यमातून सरकारला विनंती करतो की इशारा पण देतो की या TAT पेपर अशा फुटीचे प्रकरण पुढे झाले तर संभाजी ब्रिगेड महाराष्ट्रभर तीव्र स्वरूपामध्ये आंदोलन करेल. आमची संभाजी ब्रिगेडची मागणी होती की जे या पेपर फुटीमध्ये दोषी आहेत त्यांच्यावर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. कारण 20 मुलांनी या ठिकाणी आत्महत्या केलेल्या आहेत. त्या मुलांच्या या ठिकाणी त्या मुलांच्या कुटुंबियांचा कशा पद्धतीने त्यांचा रोष असेल, त्यांनी काय पद्धती मुलांकडून अपेक्षा बाळगल्या असतील हे सरकारने ध्यानात घेतलं पाहिजे. वालूज MIDC के कामगार चौक में 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम हुआ. ट्रैफिक पुलिस की बरवक्त मदाखलत से बड़ा हादसा टल गया. पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए हालात पर काबू पा लिया और ट्रैफिक को भी बहाल किया. वालूज MIDC के कामगार चौक में पीर की दोपहर 2 ग्रुप अचानक आमने सामने आ गए, जिसके बाद दोनों के दरमियान हाथापाई शुरू हो गई. वाक़ई की इत्तला मिलते ही ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिस एहलकार शमसुद्दीन कादरी और पुलिस अमलदार विकास गोमलाडू ने फौरी मदाखलत करते हुए दोनों ग्रुपों को मुंतशिर किया और हालात को काबू में लिया. अगर पुलिस वक्त पर न पहुंचती तो कोई बड़ा नाखुशगवार वाक़या पेश आ सकता था. पुलिस की मुस्तैदी के बाइस न सिर्फ कशीदगी ख़त्म हुई बल्कि मसरूफ़ चौराहे पर ट्रैफिक भी मामूल पर आ गया. वाक़े की असल वजह अभी तक वाज़ेह नहीं हो सकी. ताहम बताया जा रहा है कि इससे कबल भी दोनों ग्रुपों के दरमियान किसी और मकाम पर तनाज़ा हो चुका था, जिसके बाद ये झड़प दोबारा पेश आई है. शहर औरंगाबाद से मुत्तसिल रसूलपुरा आबशार इन दिनों सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है, जहां रोज़ाना हज़ारों अफराद कुदरती हुस्न से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं. शहर औरंगाबाद से मुंसलिक रसूलपुरा गांव के करीब तकरीबन 150 फीट बुलंद आबशार मुसलसल बहते पानी और सरसब्ज माहौल के बाइस सयाहों को अपनी जानिब मुतवज्जे कर रहा है. सोशल मीडिया पर वीडियोज़ वायरल होने के बाद यहाँ आने वालों की तादाद में नुमायाँ इजाफा हुआ है. औरंगाबाद, दौलताबाद, वेरूल, महसमाल और सोली भंजन जाने वाले सयाह अब रसूलपुरे का भी रुख कर रहे हैं. रोज़ाना हज़ारों अफराद अपने अहल खाना और दोस्तों के साथ यहाँ पहुँच रहे हैं. सयाहों की आमद से मकामी लोगों को भी रोज़गार मिला है और होटल, चाय, फल, मकई और दीगर छोटे कारोबार को फ़रोग़ हासिल हुआ है. शहर के ज़िला परिषद में मुलाजिमीन की हाज़िरी अब बराह रास्त चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिन्नू PM के मोबाइल पर नज़र आएगी. नई डिजिटल हाज़िरी निज़ाम से दफ्तरी नज़्म व ज़ब्त मज़ीद मजबूत होने की उम्मीद की जा रही है. इस नए निज़ाम के तहत चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिन्नू PM अपने मोबाइल पर किसी भी वक्त मुलाजिमीन की हाज़िरी और रुख्सत की मुकम्मल मालूमात हासिल कर सकेंगी. इंतज़ामिया के मुताबिक गुज़िश्ता 2 माह के दौरान मुलाजिमीन की हाज़िरी में नुमायाँ बेहतरी आई है. इसके साथ ही सनती इलाकों से मुल्हक़ा देहात में सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए खानगी एजेंसियों के ज़रिए कचरा जमा करने और रोज़ाना सफाई कराने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है, जिसके लिए ज़िला परिषद के फ़ंड से माली इंतज़ाम करने पर भी गौर किया जा रहा है. कौमी ग्राम स्वराज मुहिम के वर्कशॉप में अवामी नुमाइंदे तो वक्त पर पहुँचे, मगर सरकारी अफसरान की गैर हाज़िरी पर शदीद नाराज़गी देखने को मिली, जिस पर अवामी नुमाइंदों ने उन अफसरान के गैर जिम्मेदाराना रवैये पर फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया. कौमी ग्राम स्वराज मुहिम के तहत तरक्याती मनसूबा बंदी के लिए औरंगाबाद में मुनक़िदा वर्कशॉप उस वक्त तनाज़े का शिकार हो गया जब ज़िला परिषद और पंचायत समिति के मुंतखब नुमाइंदे वक्त पर पहुँच गए, लेकिन मुताल्लिक़ा सरकारी अफसरान और मुलाजिमीन मुक़र्ररा वक्त पर मौजूद न थे. अफसरान की ताख़ीर के बाइस प्रोग्राम का शेड्यूल मुतासिर हुआ, जिस पर अवामी नुमाइंदों ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया. नुमाइंदों का कहना था कि इस तरह की लापरवाही से न सिर्फ उनका कीमती वक्त ज़ाय होता है बल्कि तरक्याती मंसूबों की रफ्तार भी मुतासिर होती है. उन्होंने मुतालबा किया कि मुस्तक़बिल में इस किस्म की गफलत बर्दाश्त न की जाए और मुताल्लिक़ा गैर जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए. आज छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा परिषद यांच्या संयुक्त विद्यमानाने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियानचं आज शिबिर आज आयोजित केलं होतं. खऱ्या अर्थानं सकाळी शिबिराचा वेळ होता 9 ते 5, पण 9 वाजेपासून आम्ही सगळे लोक इथं येऊन थांबलेलो आहे. पण इथं अधिकारी तुम्ही बघा, एक व्यासपीठावर एक सुद्धा अधिकारी माननीय सभापती महोदय यांना मी विनंती करतो की त्यांनी व्यासपीठावर यावं. माननीय सभापती महोदय, शेवटी अधिकाऱ्यालाच वेळेचं भान नाही आहे
आणि ते लोक नदीत आहेत. आता किती वाजले? 11 वाजले बघा, 11 वाजले. शेवटी अधिकाऱ्यांनी वेळ पाळली पाहिजे, वेळेवरती आलं पाहिजे. त्यांनी जर वेळ पाळली तर सर्व सदस्य तर सगळे 2 तासापासून येऊन बसलेले आहेत तिथं. म्हणजे शेवटी मला एकच सांगायचं की अधिकाऱ्यांनी त्यांचं काम वेळेवर केलं पाहिजे. एक जरी सदस्य आला तर तुम्ही शिबिर चालू करा ना, बाकीचे लोक येतील, पण त्यांच्यासाठी वेळ थांबू नाही शकत ना, बाकीच्या लोकांना पण काम आहेत ना. एक सुद्धा अधिकारी नाही आहे तिथं, एक सगळे सदस्य बसलेले आहेत तिथं. म्हणजे या अशा पद्धतीने तुम्ही फोन तिकडे करा, एक बी अधिकारी आला का अजून 5 तुम्ही आणि आपण किती जमलेच आपलं काही आहेच नाही त्यांना विचारपूस. भारतीय किसान यूनियन के कौमी तर्जुमान राकेश टिकैत ने कहा है कि मुल्क में तब्दीली की नई शुरुआत हो चुकी है और अब जिद्दोजहद ताकत नहीं बल्कि फ़िक्र से लड़ी जाएगी। नांदेड़ जाते हुए कन्नड़ में मुख्तसर क़याम के दौरान किसान लीडर राकेश टिकैत ने मकामी किसानों से गुफ्तगू की। उन्होंने दिल्ली में पेपर लीक के खिलाफ तलबा तहरीक की हिमायत करते हुए कहा कि नौजवान अपने मुस्तकबिल के लिए सड़कों पर निकल रहे हैं, जो एक मस्बत अलामत है। टिकैत ने इम्तिहानी निज़ाम में बढ़ती बेज़ाब्तगियों पर तशवीश ज़ाहिर करते हुए कहा कि सिर्फ एहतजाज काफ़ी नहीं है बल्कि पूरे निज़ाम पर अवामी निगरानी ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि आज की नौजवान नस्ल की टेक्नोलॉजी और नई सोच अगर तजुर्बाकार नस्ल के साथ मिल जाए तो मुल्क में मस्बत इनकलाब मुमकिन है। इस मौके पर मुख्तलिफ रियासती और कौमी सतह के किसान लीडर भी मौजूद थे। इसके मॉनिटरिंग हो पूरे सिस्टम की, वो तो एक आंदोलन ने एक डिमांड करी कि भाई ये करो, लेकिन सिस्टम तो सरकार को सुधारना है। सिस्टम कोई बच्चे तो सुधारेंगे नहीं, ये इस्तीफा होगा और वो सुधार देगा फिर। वो तो पूरी मॉनिटरिंग हो, सरकार को मंत्री बनाएगी, वो बनाए, उन्हें चार्ज की सूट दे दिया, लेकिन आगे इस तरह का पर्चे लीक ना हो और उसकी मॉनिटरिंग हो और ठीक काम चला। ये है मेन। तो पहले वाली घटनाएं सारी देखी, खेती किसानी की उसकी, और ये नए वाला भी देखा, तो हम बीच के कड़ी है एक, जिसने यह जनरेशन भी देखी वो भी देखी, तो हम बीच के हैं अभी। और जो हमारे से पहले हैं हमने उनसे बात सुनी। शहर औरंगाबाद में 9 फीट लंबे अजदहे समेत 6 सांपों को महफूज तरीके से जंगल में छोड़ दिया गया है। ये कार्रवाई महकमा जंगलात की निगरानी में अंजाम पाई। नाजरीन, शहर औरंगाबाद के देवलाई इलाके से रेस्क्यू किए गए तकरीबन 9 फीट लंबे इंडियन रॉक पाइथन और शहर के मुख्तलिफ इलाकों से पकड़े गए 5 गैर जहरीले सांपों को महकमा जंगलात की निगरानी में बहिफाजत छोड़ दिया गया। वाइल्ड लाइफ बहुउद्देश्य संस्था के रजाकारों ने महकमा जंगलात के अफसरान की रहनुमाई में यह कार्रवाई अंजाम दी। इदारे ने शहरियान से अपील की है कि अगर किसी इलाके में सांप या जंगली जानवर नजर आए तो उसे नुकसान पहुंचाने की बजाय फौरी तौर पर महकमा जंगलात या रेस्क्यू टीम को इत्तला दें, ताकि जानवरों को महफूज तरीके से उनके कुदरती मस्कन में मुंतकिल किया जा सके। शहर जालना के ताल्लुका भोकरदन की 60 से 80 तालिबात अब भी मुफ्त बस सर्विस से महरूम हैं, जिसके बाइस बारिश के मौसम में उनकी तालीम शदीद मुतासिर हो रही है, जिस पर वालिदैन ने फौरी बस सर्विस शुरू करने का मुतालबा किया है। जिला जालना के ताल्लुका भोकरदन के तादोलवाड़ी में वाक़े श्री छत्रपति संभाजी स्कूल की तकरीबन 60 से 80 तालिबात आज भी हुकूमत की मुफ्त बस सर्विस से महरूम है। अगरचे स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से तजवीज़ भेजी जा चुकी है और मुताल्लिका महकमों ने रूट का सर्वे भी मुकम्मल कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद बस सर्विस शुरू नहीं हो सकी। बारिश के मौसम में तालिबात को कीचड़, पानी और दुश्वार रास्तों से गुजरकर स्कूल पहुंचना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी तालीम मुतासिर हो रही है। वालिदैन और असातिज़ा ने मुतालबा किया है कि अहलिया बाई होलकर मंसूबे के तहत मुफ्त बस सर्विस फौरी तौर पर शुरू की जाए, ताकि तालिबात को महफूज और बाकायदा सफरी सहूलत मैसर आ सके। शाळेत जाण्यासाठी बस नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांची परेशानी चालली। शाळेत जाण्यासाठी बस नसल्यामुळे मुलींची खूप परेशानी होत आहे। ती ओढे व नाले असल्यामुळे मुलींची शाळेत जाण्यासाठी खूप परेशानी होती। शहर जालना की कुंडलिका नदी के किनारे कचरे के ढेर ने शहरियान की सेहत और माहौलियात के लिए ख़तरा पैदा कर दिया है। मकामी अफराद ने इंतज़ामिया से फौरी सफाई मुहिम चलाने का मुतालबा किया। शहर जालना में वाक़ई कुंडलिका नदी के किनारे कई दिनों से कचरे का बड़ा ढेर जमा होने के बाइस मकामी शहरियान शदीद परेशानी का शिकार हैं। कचरे से उठने वाली बदबू ने इलाके का माहौल आलूदा कर दिया है, जबकि मच्छरों और मक्खियों की अफजाइश से मुताद्दी बीमारियों का ख़तरा भी बढ़ गया है। शहरियान का कहना है कि मुताद्दिद बार शिकायत के बावजूद
म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सफाई महकमे ने इस मसले की जानिब खातिर ख्वाह तवज्जो नहीं दी। समाजी कारकुनान और माहौल दोस्त तंजीमों ने भी इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर कचरा हटाया जाए, नदी के किनारे सफाई मुहिम चलाई जाए और आइंदा यहाँ कचरा फेंकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। यासाठी माझी विनंती आहे की महानगरपालिका प्रशासनाला या ठिकाणची जी दुर्गंधी ही घाण आहे ती आपण त्वरित त्या ठिकाणी उचलावी। आणि या ठिकाणी काय आहे की विशेष म्हणजे हा जो रस्ता आहे हा रस्ता रहदारीचा आहे, रहदारीला सुद्धा अडथळा निर्माण होतो आणि परत ही घाण जी आहे ही घाण ज्या नदीच्या पात्रामध्ये जर गेली तर एवढं मोठं सुंदर काम ह्या NGOनं केलं की ज्या काही सामाजिक संस्था आहेत आणि शासनाचा हे उपक्रम आहे, शासनाने सुंदर काम केलं आहे, परंतु इच्छा अपेक्षा एकच आहे की महानगरपालिका प्रशासनानं ही घाण त्वरित या ठिकाणी साफ करावी जेणेकरून ती घाण परत नदी पात्रात जाणार नाही। ताल्लुका सिल्लोड के बोजगांव सासरवा रोड पर वाक़े खेड़ना नदी के पुल की कम ऊंचाई हर साल आवाम के लिए बड़ी मुश्किल बन जाती है। मकामी अफराद ने नए ऊंचे पुल की तामीर का मुतालबा किया है। ताल्लुका सिल्लोड के बोजगांव सासरवाड़ा रोड पर वाक़े खेड़ना नदी का ये पुल हर साल बारिश के मौसम में मकामी शहरियान के लिए शदीद मुश्किलात का बाइस बनता है। पुल की ऊंचाई कम होने के बाइस मामूली बारिश में भी पानी पुल के ऊपर से गुजरने लगता है, जिससे 5 से 6 देहात का राब्ता कई माह तक मुनक़ते रहता है। तलबा, किसान, मरीज़ और रोज़ाना सफ़र करने वाले शहरियान को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है, जबकि एम्बुलेंस जैसी हंगामी खिदमात भी मुतासिर होती हैं। मकामी अफराद का कहना है कि पुल के दोनों किनारों पर बड़े गड्ढे भी बन जाते हैं, जिससे हादसात का ख़तरा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। शहरियान ने महकमा तामीरात से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर मौजूदा पुल की जगह एक नया ऊंचा और मजबूत पुल तामीर किया जाए ताकि साल भर महफूज आमदोरफ्त मुमकिन हो सके। भोकरदन पुलिस ने खुफिया इत्तला की बुनियाद पर जुआ अड्डे पर छापा मारकर 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान नकद रकम, मोटरसाइकिलें और दीगर सामान समेत 1,33,000 रुपये से ज़ायद का माल जब्त किया गया। ज़िला जालना की भोकरदन पुलिस ने खुफिया इत्तला की बुनियाद पर लिंगेवाड़ी पार्टी के करीब एक शेड पर छापा मारकर जुआ खेलने वाले 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने नकद रकम, 4 मोटरसाइकिलें और जुआ खेलने का सामान जब्त किया, जिनकी मजमूई मालियत 1,33,380 रुपये बताई गई है। इस मामले में महाराष्ट्र जुआ ममानियत कानून के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि मज़ीद तहकीकात जारी है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयाँ आइंदा भी जारी रहेंगी। काल दिनांक 2/8/2026 रोजी पोलीस स्टेशन भोकरदन येथे लिंगवाडी पाटीजवळ जालना रोड येथे काही लोक पैशाच्या हारजीतवर जुगार खेळत असल्याबाबत माहिती मिळाल्याने सदर ठिकाणी पंचासमक्ष छापा टाकला असता 6 इसम हे जुगार खेळताना मिळून आल्याने त्यांना ताब्यात घेतले असता त्यांच्याकडे एकूण सदर जुगार खेळण्यासाठी वापरलेले पैसे व इतर मोटरसायकल मुद्देमाल असा 1,33,000चा मुद्देमाल जप्त करण्यात आलेला आहे व सदर 6 इसमाविरुद्ध चालू कायद्यानुसार गुन्हा दाखल असून त्याचा तपास चालू आहे। डॉक्टर रामेश्वर कोथावले ने बाज़ाब्ता तौर पर ताल्लुका वाशी के करमवीर मामा साहब जगदाले कॉलेज के मुस्तकिल कुल वक्ती प्रिंसिपल का ओहदा संभाल लिया। वाज़ेह है कि ये ओहदा पिछले 4 साल से इल्तिवा में पड़ा था। ज़िला उस्मानाबाद के ताल्लुका वाशी में वाक़े करमवीर मामा साहब जगदाले महाविद्यालय को तकरीबन 4.5 साल बाद मुस्तकिल कुल वक्ती प्रिंसिपल मिल गए हैं। डॉक्टर रामेश्वर कोथावले ने बाज़ाब्ता तौर पर ओहदे का चार्ज संभाल लिया। इस मौके पर इदारे के ओहदेदारान, तरक्याती कमेटी के अरकान, असातिज़ा और गैर तदरीसी अमला मौजूद था। मुकर्रिरीन ने उम्मीद ज़ाहिर की कि नए प्रिंसिपल की क़ियादत में तालीमी मेयार मज़ीद बुलंद होगा। अपने खिताब में डॉक्टर कोथावले ने यकीन दिलाया कि वह तमाम असातिज़ा और मुलाजिमीन के ताउन से इदारे की तरक्की और तलबा के रोशन मुस्तकबिल के लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे। ताल्लुका परतूर के ST डिपो को 5 नई बसों का तोहफ़ा मिला है। इफ्तिताह के बाद इलाके के रुकन असम्बली बबन राव लोनीकर ने खुद बस में सफ़र करके मुसाफिरों से बातचीत की। ज़िला जालना के ताल्लुका परतूर के ST डिपो में 5 नई बसों का इफ्तिताह रुकन असम्बली बबन राव लोनेकर के हाथों अंजाम पाया। इस मौके पर उन्होंने बसों की पूजा की,
सब्ज झंडी दिखाकर उन्हें रवाना किया और बाद-ए-अज़ां खुद भी एक बस में सफ़र करके मुसाफिरों से बराह रास्त गुफ्तगू की। उन्होंने मुसाफिरों से सफ़री सहूलियात, सफाई और दीगर मसाइल के बारे में भी मालूमात हासिल की और मुताल्लिक़ा हुक्काम को बेहतर खिदमात फराहम करने की हिदायत दी। नई बसों की शमूलियत से परतूर और अतराफ़ के देही इलाकों के अवाम को महफूज, आरामदा और बर वक्त सफ़री सहूलत दस्तियाब होने की उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है। नांदेड़ के रुकन असम्बली प्रताप पाटिल चिखलेकर की सालगिरह तकरीब के दौरान एक नन्ही बच्ची की तकरीर ने सबकी तवज्जो हासिल कर ली। बच्ची ने नांदेड़ की तरक्की के लिए उन्हें वज़ीर बनाने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। नांदेड़ के साबिक रुकन पार्लियामेंट और मौजूदा रुकन असम्बली प्रताप पाटिल चिखलेकर की सालगिरह के मौके पर मुनक़िदा तहनीती तकरीब के दौरान एक कम उम्र बच्ची की तकरीर ने हाज़रीन की भरपूर तवज्जो हासिल की। मिनुआ पावड़े नामी इस बच्ची ने अपने खिताब में कहा कि वो दुआ करती है कि प्रताप पाटिल चिखलीकर को रियासती काबीना में वज़ीर बनाया जाए ताकि नांदेड़ की तरक्की मज़ीद तेज़ हो सके। इस मासूम और पुरखुलूस इजहार ख्याल पर हाज़रीन ने भरपूर दाद दी। बाद-ए-अज़ां बच्ची के वालिद ने भी कहा कि ज़िले के अवाम और किसानों की यही ख्वाहिश है कि चिखलीकर को वज़ारत की ज़िम्मेदारी मिले ताकि इलाक़े की तरक्की के नए दरवाज़े खुल सकें। सेवा केली आहे आणि करत आहात। तुमच्या कामामुळे हजारो लोकांच्या जीवनात बदल घडला आहे। आज माझी मनापासून एकच इच्छा आणि स्वप्न आहे की चिखलीकर साहेब तुम्ही लवकरच महाराष्ट्राचे मंत्री व्हावेत। तुमच्यासारखे प्रामाणिक आणि जनतेवर प्रेम करण्याच्या व्यक्तीला मंत्रिपदाची जबाबदारी मिळाली व नांदेड जिल्ह्याचा विकास व्हावा हीच माझी देवाकडे प्रार्थना आहे आणि देव पण माझी इच्छा लवकरच पूर्ण करेल ही माझी खात्री है। बुजुर्ग खवातीन को लॉटरी का झांसा देकर जेवरात हथियाने वाले आदि मुलजिम को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार करके 29 लाख रुपये से जायद का माल बरामद किया। क्राइम ब्रांच ने आफ्ताब उर्फ फ़हीम अहमद शेख को गिरफ्तार किया जो बुजुर्ग खवातीन को लॉटरी निकलने या खुद को पुलिस एहलकार जाहिर करके उनका एतमाद हासिल करता था और सोने के जेवरात लेकर फरार हो जाता था। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से 26.5 तोले सोने के जेवरात जिनकी मालियत तकरीबन 28,22,000 रुपये है और वारदात में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल समेत मजमूई तौर पर 29,02,000 रुपये का माल जब्त किया। तफ्तीश के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ऐसी 8 वारदातों का इंकशाफ हुआ। बाद-ए-अज़ां मुलजिम को मज़ीद तहक़ीक़ात के लिए हरसूल पुलिस के हवाले कर दिया गया। औरंगाबाद के सातारा इलाके में नामालूम चोरों ने एक मकान में नक़ब लगाकर 3,05,000 रुपये मालियत का सामान चुरा लिया। सातारा इलाके की भक्त प्रहलाद सोसाइटी में 1 और 2 अगस्त के दरमियान नामालूम चोरों ने घर का ताला तोड़कर वारदात अंजाम दी। शिकायत कुनिंदा करिश्मा शिवलाल जायसवाल के मुताबिक चोर सोने की अंगूठियां, कानों के जेवरात और 35,000 रुपये नकद समेत मजमूई तौर पर 3,05,000 रुपये मालियत का सामान ले गए। इत्तला मिलते ही सातारा पुलिस ने मौके का मुआयना किया और नामालूम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इस मामले की मज़ीद तहक़ीक़ात असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर शिवाजी घोरपड़े की निगरानी में जारी है, जबकि पुलिस मुलजिमान की तलाश में मसरूफ़ है। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर की AIMIM माजूर सेल ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को दिया सख्त इंतबाह। तंजीम ने मुतालबा किया कि माजूर अफराद के बकाया जात फौरी किए जाए अदा। बसूरत दीगर 6 अगस्त को कॉरपोरेशन दफ्तर के बाहर शदीद एहतजाज का दिया इंतबाह। औरंगाबाद जिला परिषद में मुलाजिमीन की हाजिरी का नया डिजिटल निज़ाम नाफिज। अब होगी तमाम मुलाजिमीन की हाजिरी बराह रास्त चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के मोबाइल पर, जिससे दफ्तरी नज़्म ज़ब्त और शफाफियत में आएगी बेहतरी। शहर जालना की कुंडलिका नगदी के किनारे कचरे के बढ़ते ढेर बड़े शहरियान का दर्द सर। मकामी अफराद ने सेहत और माहौलियात को लाहक खतरात पर तशवीश का किया इजहार और इंतजामिया से किया फौरी सफाई मुहिम चलाने का मुतालबा। और ताल्लुका परतूर एसटी डिपो को मिला 5 नई बसों का तोहफा। इफ्तिताह के बाद रुकन असम्बली बबन राव लोनेकर ने खुद किया बस में सफर, मुसाफिरों से की मुलाकात और दीगर सहूलतें फराहम करने के अज़्म का किया इजहार। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नवीद अंजुम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।